पूछो जमाने से, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल dear students on my Arvind Geography Verse YouTube channel. Dear students, today we are going to study a very important topic, that is soil resource geography class 10th ICSE. Today we will study all the important points, all the important topic that is to be covered. So today the topics to be covered are: first is the soil and its classification. Second, we will cover all the types of soil, that is first we will go for the alluvial soil, then we will go for the red soil, then laterite soil, and last we will go for the black soil. After this we will cover an important topic, that is the soil erosion, and we will extend for the erosion done by the man, erosion by water, erosion by wind, and all the important words which are associated with such, like windbreak and all. We will see with the slide image also, so that we may clear up all our concepts. Next, the most important topic will be the cause of soil erosion and the prevention of soil erosion. Basically from here an important 3 marks question is asked. It is very compulsory. So from this chapter nearly 12 mark question will be asked. First, in section B there question of 10 marks, and when we talk about the section A, here one mark will be there for the map and one MCQ. So minimum 12 mark question will be asked from this chapter. So without wasting the time, we'll start now. See, first, when we talk about the soil resource, so important thing is what is soil and how are you going to define this. So soil is the uppermost thin layer of the earth crust. See its definition, you see, soil is the uppermost thin layer of the earth crust made up of organic matter, mineral, weathered rocks covering the earth's surface. Means it is the outermost thin layer of the earth that has organic matter. Organic means dead remain of plants and animals, which we call humus, minerals, and weathered rock which contains inorganic matter. Okay, organic. So soil consists of organic plus inorganic matter. Okay, यानी soil के अंदर organic और inorganic दोनों matter present होते हैं, और अगर सॉइल के अंदर इनमें से कोई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज देयर इज नो ऑर्गेनिक मैटर, यानी इफ सॉइल लैक्स ह्यूमस, देन दैट सॉइल इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द फर्टाइल. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस. वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस. ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है. व्हाट इज पीडोजेनेसिस और डिफाइंड पीडोजेनेसिस. सो यू विल हैव टू राइट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोजेनेसिस. नाउ next, soil is formed by the process of weathering. Very important. Weathering means breaking up of the rock due to natural agents like temperature, pressure, rainfall, etc. Where parent rocks material break down due to wear and tear, and this weathering causes the formation of the soil. This is the very concept we should be very clear of. Okay. Next important word here, we'll go for the humus. Humus is the dead remain of plants and animals. It is the main constituent of the soil. In that also we may say humus is the main important organic constituent of the soil. यानी ह्यूमस प्लांट्स और एनिमल के डेड रिमेन से बनता है, और ये आपका ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट बनाता है सॉइल के अंदर. जैसे आप नीचे डायग्राम में देखें, ऑर्गेनिक मैटर आर डिकेड बाय द वर्म्स लाइक अर्थवर्म एंड अदर creatures present there. Now these all animals, they will decompose the organic matter, either it is plant or animals. यानी plants या animals के dead part हो सकते हैं, उनके कुछ excreta हो सकते हैं animals के, उनको ये animals degrade करते हैं और they convert that organic matter into humus. I hope this basic concept is clear. Next, we will see this diagram. This diagram is very important. In this, see first, this is the soil profile. This is the important diagram of soil profile. Okay, it 1 or 2 or 3 marks question may be asked regarding this diagram, and this is very important as it is an important chapter in CBSE also. So questions are asked for other competitive exams, so we'll definitely cover it. See, basically when we talk about the layers of the soil, you see what we call soil horizon. In that, first here O horizon, after that there is A horizon, then B and C horizon. So we'll start with the bottom, that is C horizon. C horizon, it consists of the
parent rock. Rocks, when they break and they form, when they break up into smaller pieces, they form B layer, which we call subsoil. Okay, they form subsoil, and above the subsoil lies the topsoil, and topsoil consists of two important parts, that is O horizon, means it is very rich in organic matter, whereas when we talk about this A or topsoil, it consists of organic plus inorganic matters. So most important thing I'd like to tell you all that O horizon consists of humus. O horizon में सबसे ज़्यादा ह्यूमस मिलता है, दैट इज द डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, एंड दैट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स देयर. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ओ होरिजोन कंसिस्ट ऑफ डिकेइंग एनिमल्स लाइक अर्थवर्म एंड अदर क्रिएचर्स विच डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर्स, so that is very much rich in organic things. Below that lies the top horizon or the topsoil. This soil is also very much rich in organic substance and is very much essential for the growth of the plant. When we talk about the size of the particles or soil present here, so when we talk about the size, so as we move below, the size of the soil particle increases. Okay, it increases. Soil का साइज नीचे आने पे बढ़ता है. वही अगर हम बात करें ऊपर जा रहे हो आप, तो ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बढ़ता है. ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीजेस. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको ये याद रखना है. यू विल हैव टू लर्न दिस डायग्राम ऑल्सो एंड दिस कैन बी आस्क्ड. सो विल मूव फॉरवर्ड. सो व्हाट आर द क्राइटेरिया नाउ वी आर गोइंग टू टॉक दैट व्हाट इज द important basics or what is the criteria on which you are going to tell that this particular soil is fertile or not. Okay, for example, if a soil has sufficient amount of moisture, means here we are going to talk about the certain criteria which tell that this particular soil is considered to be fertile. So the first among that is it should have adequate amount of moisture, यानी उस soil के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए, water का amount होना चाहिए, otherwise plants सूख जाएंगे. Next, इट शुड हैव सफिशियंट डेप्थ, यानी इस प्लांट सॉइल की गहराई पर्याप्त होनी चाहिए, उसकी डेप्थ होनी चाहिए पर्याप्त, ताकि प्लांट्स का जो रूट्स है वो काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट करे, होल्ड करे और इजीली सर्वाइव और स्टैंड कर सके. नेक्स्ट, इट शुड बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक NP and K, मीन्स नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. These are the main important soil constituent which are required by a plant to grow. So these are the important things, that is nitrogen, phosphorus and potassium, which are required by a plant, and a soil is considered to be fertile if it have NP and K. Okay, if it lacks NPK, then it is not considered to be the fertile soil. Next we'll go for last point, that is the organic matter. That a soil is considered to be fertile, good for the growth of a plant or crop when it have sufficient amount of organic matter in it. अगर ऑर्गेनिक मैटर पर्याप्त मात्रा में है, आप बोलोगे दिस सॉइल इज फर्टाइल. अगर नहीं है, देन यू विल हैव टू ऐड दिस मैन्योर और ह्यूमस इनटू द सॉइल in order to make it fertile. We will see in the case of laterite soil. Okay, so we are going to see each and every soil, and we will cover all the important topics which are very much from where the questions are asked. Okay, so without being tensed, now please relax and study conceptually and listen the text which I am going to explain you all. So most important thing is that I would like to tell that please see here, you will get notes also in the same video, because I have extracted this from number of books and I have written this personally in order to make you understand in a very lucid or simple language. So we'll go ahead. So classification of soil. What are the classification of soil? First, on the basis of location, it is of two type. यानी सॉइल को आप कैसे क्लासीफाई कर रहे हो. फर्स्ट हो गया आपका लोकेशन के बेसिस पे रेसिडुअल सॉइल, दूसरा हो गया ट्रांसपोर्टेड सॉइल. कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखें. सपोज करो ये आपका एक लैंड हो गया, जमीन हो गया, यहाँ एक रॉक हो गया. ओके, और इस वी नो दैट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग अप ऑफ द रॉक, यानी वेदर की वजह से इसका आउटर लेयर ढीला पड़ा और यहाँ पे टूटने की वजह से सॉइल बन गया. डन. इफ दिस सॉइल इज रिमेन्स हियर इटसेल्फ, अगर ये सॉइल यहीं जहां से टूटा वहीं छूट गया, यानी वो दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हुआ, दैट सॉइल इज कंसीडर्ड टू बी द
इन सीटू सॉइल। आप इसको क्या बोलोगे? इन सीटू सॉइल बोलेंगे या रेसिडुअल और सेडिमेंट्री सॉइल। डन। बट when this broken soil or the soil formed by the weathering of rock is blown away by air or water and it gets deposited somewhere and it forms a soil, this soil is called ex situ soil. Okay, when we talk about these two important word, that is in situ का मतलब होता है अपने ओरिजिनल जगह पे, ex situ का मतलब होता है दूसरी जगह, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब बेबीज तो एक्सीटू होते हैं, एक्सीटू होते हैं ना, वो तो लैब में बनाए जाते हैं। डन, इससे आप इसको समझ लेंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे रेसिडुअल और सेडिमेंट्री सॉइल, सॉइल फॉर्म इन देयर ओरिजिनल पोजीशन बाय ब्रेकिंग अप ऑफ द पेरेंट रॉक इज कॉल्ड इन सीटू। यू हैव टू लर्न एग्जांपल्स, यहाँ से एग्जांपल से क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू में। फर्स्ट, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल आर एग्जाम्पल ऑफ दिस रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, यानी इसका आप ट्रांसपोर्टेड सॉइल देख लो। ट्रांसपोर्टेड सॉइल वेरी इजी डेफिनेशन, द सॉइल फॉर्म बाय द ट्रांसपोर्टेशन बाय द वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन, दैट इज रिवर एंड विंड। यानी वो सॉइल जो बनने के बाद रिवर्स या विंड्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह बन रही है, आप उसको बोलोगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। लेकिन वो सॉइल टूटने के बाद सेम प्लेस पे बन रही है, आप उसे क्या बोलोगे? रेसिडुअल सॉइल। आई होप दिस इज क्लियर एंड डिफरेंस ऑफ 2 मार्क्स इट मे बी आस्क्ड। अब देखो आपको याद क्या रखना है। देखो याद करने का 2 तरीका है। आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड सॉइल का एग्जाम्पल क्या ले लोगे? अलुवियल सॉइल, क्योंकि अलुवियल सॉइल ही रिवराइन सॉइल है, यानी यही ट्रांसपोर्ट होकर बनती है बाय रिवर वाटर। तो बस आपको ये यू विल हैव टू लर्न ओनली दिस अलुवियल सॉइल, दैट अलुवियल सॉइल इज एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। बाकी जितने सॉइल है ना, दे आर एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल सॉइल। क्लियर? तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है और ये याद रखना है कि अलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड सॉइल का एग्जाम्पल है। बाकी जितने भी सॉइल है ना, दे आर एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल सॉइल। डन? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, when we talk about the types of the soil on the basis of the origin, see what are the basis of classification. First, it is the origin, color, composition and location of the soil. It is classified into following types. First is alluvial soil. सबसे पहला कौन सा सॉइल हो गया? alluvial soil। देख लें, सबसे खास सॉइल है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा ये सॉइल मिलता है, क्योंकि नंबर ऑफ रिवर्स की वजह से। ठीक, सबसे ज़्यादा परसेंटेज कवर करता है। सेकंड, ये सबसे फर्टाइल सॉइल है। ये 2 क्वेश्चंस, ये 2 पॉइंट जो मैंने बोले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ रहे हैं। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। यानी जैसे मान लो ये फ्लड आ रहा है इस क्षेत्र में, यहाँ से रिवर्स फ्लड के समय में ना ये पूरा मान लो इतना क्षेत्र पानी से डूब जा रहा है। अब आप देखो जो रिवर्स वाटर होते हैं, रिवर का वाटर होता है ना, दैट इज वेरी मडी, बहुत गंदा होगा। और जब रिवर में फ्लड वापस जाने लगता है तो जो उसके अंदर गंदी मिट्टी होती है ना, ब्राउन कलर की मिट्टी, वो उसको उसी जगह पे डिपॉजिट करके और सिर्फ पानी चला जा रहा है। या वाटर जब रुक जाता है तो उसके अंदर सेडिमेंटेशन से जो उसके अंदर सेडिमेंट्स थे ना, वो वहीं पे बैठ जाते हैं और पानी जब वापस चला जाता है तो उसकी वजह से जो मिट्टी छूट गया है ना नीचे, दैट फॉर्म्स अलुवियल सॉइल एंड दैट इज द बेस्ट सॉइल। ओके, सी these are formed by the sediments brought down by the rivers. River deposit very fine particles of the soil called alluvium. अब जो रिवर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो डिपॉजिट कर रहा है ना, आप उसको alluvium बोलते हो और इससे बनता है alluvial soil. This soil is also called riverine soil. Very important. Riverine, R-I-N-E, यहाँ छूट गया N word. This soil is also called riverine soil because it is mainly found in the river basins. ये क्वेश्चन पूछता है क्या बताओ इसको रिवराइन सॉइल क्यों बोला जाता है? इट इज कॉल्ड रिवराइन सॉइल बिकॉज इट इज फाउंड इन द रिवर बेसिन। अब जहां रिवर बेसिन का मतलब क्या है, थोड़ा ये देख लो आप। सपोज करो ये रिवर है, अब फ्लड के समय में ना इतना दूर तक इसका पानी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जहां जिस एरिया तक किसी रिवर का वाटर फ्लड वाला पहुंच जाए ना, आप उसको उसका रिवर बेसिन बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कुछ 2-4 बातें जो आपको जाननी चाहिए वो क्या है? अलुवियल सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। आप इसको एक साथ क्या बोलते हो? लूम। इट इज द डिपोजिटेड बाय 3 मेन सिस्टम्स, यानी भारत के अंदर 3 बेसिकली देयर आर 3 मेन रिवर सिस्टम्स। फर्स्ट इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन द नॉर्दर्न प्लेन,
इट इज ऑल्सो फाउंड इन द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब यहाँ एक देखो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन मैं बताऊँ आपको। जब साउथ इंडियन रिवर्स की हम बात करते हैं तो जो बेसिकली विच आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर्स है ना, इन्हीं से डेल्टा बनता है। ब्रह्मपुत्र, गंगा जो आती है ना, वो डेल्टा बनाती है। क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर लॉन्ग रिवर्स, ये काफ़ी दूर से चल के आती हैं एंड दे आर स्लो एट द माउथ। जब ये ओशियन से मिलने वाली होती है ना, उनकी स्पीड घट जाती है। जब वाटर का स्पीड घटता है तो उसके अंदर जो लोड है ना, यानी जो गंदगी या जो चीज़ वो कैरी आउट कर रहा है, वो वहाँ पे सेटल डाउन होने लगता है। सो दिस रिवर स्टार्ट फॉर्मिंग डेल्टास। तो डेल्टास जहाँ बनेगा वहीं एलुवियम सॉइल का या एलुवियल का फॉर्मेशन भी होगा और एल्यूमिनियम का डिपोजिशन होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, दिस डू नॉट फॉर्म डेल्टा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही तेज चलने वाली रिवर्स हैं, बहुत तेज चलती हैं, तो ये डिपोजिशन नहीं कर पाएंगी। डिपोजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द रिवर। अगर स्पीड ज़्यादा, डिपोजिशन कम, स्पीड कम, डिपोजिशन ज़्यादा। आई होप मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसमें आपका कुछ लगा नहीं, लेकिन हाँ, हमको मोटिवेशन जरूर मिलता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस of age, this is classified into two part. What? Alluvial soil is classified into two part. यानी alluvial soil को दो हम ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है व्हाट इज दैट इज खादर एंड भांगर। ओके, alluvial soil is classified into two part, that is खादर एंड भांगर। अब देखते हैं इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले आपको मैं समझा दूं कॉन्सेप्ट, फिर आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ओके, सी डायग्राम में देख लो, दिस इज खादर सॉइल, ओके, एंड दिस इज द भांगर सॉइल। अब देखो खादर ज़्यादा फर्टाइल लग रही है, लेकिन ये भांगर सॉइल में देखो कंकड़ वगैरह है, ये उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ये ज़्यादा फर्टाइल है। अब दोनों में होता क्या है, कॉन्सेप्ट आप समझें। सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया, मान लिया हमने ये कोई एरिया है और इसमें रिवर यहाँ तक पहुँची और इसमें रिवर बेसिन ये क्षेत्र है, यानी यहाँ तक पानी फ्लड का हर साल पहुँच जा रहा है। बाकी ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे रिवर वाटर नहीं पहुँचता है। अब आप बताओ, जहाँ पे हर साल वाटर पहुँच जा रहा है वहाँ पे तो मिट्टी नहीं हो जाएगी। नहीं हो जाने का मतलब यहाँ पे न्यू डिपोजिशन हर साल होगा, तो ये ज़्यादा फर्टाइल होगा। जब ज़्यादा फर्टाइल होगा तो आप इसको बोलते हैं खादर। यानी हर साल जो मिट्टी नहीं हो रही है ना, बिकॉज ऑफ द फ्लड, यानी वो क्षेत्र जो फ्लड से डूब जा रहा हो, वहीं पे नई लेयर डिपोजिशन हो जाता है एलुवियल सॉइल का, आप उसे बोलते हो खादर, दैट इज मोर फर्टाइल। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द भांगर, भांगर वो क्षेत्र होता है जहां पे फ्लड नहीं आती है या फ्लड का वाटर नहीं पहुंच पाता है। ओके, तो वहां कंकड़ पत्थर ज्यादा मिलते हैं, वो सॉइल खादर के कंपैरिजन में उतनी फर्टाइल नहीं होती है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। आप देख लेते हैं जल्दी से इसके अंदर क्या लिखा है। खादर इज मोर फर्टाइल देन भांगर, रीजन बिकॉज इट इज फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ न्यू लेयर। हमने कलर चेंज कर दिया है। जैसे सपोज करो अगर कोई रीजनिंग आया ना, तो जो वर्ड आपको याद रखना है, की वर्ड्स, आई हैव चेंज द कलर, सो दैट आप बस उस की वर्ड को याद रखें। ओके, बाकी बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। भांगर और ओल्डर एलुवियम इज कंपोज्ड ऑफ नोड्यूल्स, खादर इट हैज अ क्लेड कंपोजिशन, यानी इसके अंदर ना क्ले का कंपोजिशन ज्यादा होता है, लेकिन खादर के अंदर ना सैंड का कंपोजिशन ज्यादा होता है। ठीक है, सैंड खादर में ज्यादा होगा, भांगर में कम। इट इज लाइट इन कलर एंड इज नॉट मोर फर्टाइल देन खादर। क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ऑन ओल्ड एलुवियम सॉइल बाय यूजिंग ऑफ द मैन्योर, यानी ऐसा नहीं है कि जो भांगर सॉइल है ना, आप उसको पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दें कि बहुत बेकार है, आप उसमें मैन्योर का इस्तेमाल करके खेती कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। अब ट्रिक की बात करें, सर कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा ट्रिक दे दीजिए। चलो ट्रिक ले लो। देखो बी वर्ड आ रहा है ना, भांगर, बी वर्ड, बी फॉर बेकार, हिंदी में आता है ना बी फॉर बेकार, बेकार का मतलब होता है नॉट गुड। तो बी फॉर भांगर, बी फॉर बेकार सॉइल, यानी ये उतनी फर्टाइल नहीं है। खादर खूबसूरत सॉइल है। ओके, तो आपको ये एग्जाम में जो मैं ट्रिक देता हूँ वो क्यों देता हूँ, देखो बच्चों, कभी आप भूलते हो ना, ट्रिक आपको नहीं भूलता है, वो बहुत इजी होता है। जैसे बी फॉर, अब आप मान लो भूल गए तो आपको याद आएगा, अच्छा बी फॉर बेकार सॉइल, यानी यही सॉइल है जो हर साल रिन्यू नहीं होती है, ये उतनी अच्छी सॉइल नहीं है। ओके, ट्रिक हो गया। अब आप देख लिया, आई होप डायग्राम से भी आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल।
हमको थोड़ा डेप्थ में जाना है क्योंकि सिलेबस सॉइल का आप क्लास 10th के लिए बहुत शॉर्ट है, ओके, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मांगता है। चलिए लिख लेते हैं। फर्स्ट, इट्स कलर वेरीज फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे लाइट डिपेंडिंग अपॉन द डिपोजिशन, टेक्सचर एंड टाइमिंग ऑफ द मेच्योरिटी। यानी वो कलर सॉइल का डिपेंड करेगा डिपोजिशन पे, उसके टेक्सचर पे और कितना समय लगा है बनने में इसमें। नेक्स्ट, सॉइल ऑफ द एलुवियल इज बिगर इन अपर कोर्स। ये देखो एक पॉइंट क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से रिवर बहना स्टार्ट करिए, सपोज करो माउंटेन हो गया और ये प्लेन पे चल के आई, तो यहाँ स्पीड ज़्यादा होगा। स्पीड का मतलब इसके वाटर के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, तो यहाँ ना बड़े बड़े पत्थरों को ये अपने साथ कैरी करके आती है। तो सपोज करो पत्थर, अब जितना आगे बढ़ोगे ना आप उतना ही इसका एनर्जी घटता है, तो ये पत्थरों का जो साइज है ना वो घटता चला जाता है। डन। इसलिए आप अगर रिवर के सोर्स की तरफ जा रहे हो तो रिवर के अंदर बड़ा पत्थर मिलता है, और जितना आप दूर जाओगे उससे उतना ही छोटा पत्थर मिलेगा, यानी रेत मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। इट इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल रिच इन आयरन, यानी सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है और किसमें रिच है? आयरन में, मैग्नीज, एल्यूमिना, पोटास एंड लाइम। बट इट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। आपको याद रखना होगा ये वर्ड कि इसके अंदर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, तो हम क्या करते हैं ना, जैसे उसमें खाद ऐड कर देते हैं, एनपीके ऐड कर दिया आपने। लेकिन एक्सेप्शन है, जो गंगा की जो अलुवियल सॉइल्स है, यानी गंगा वैलीज की जो सॉइल है ना, उनके अंदर ये नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। बाकी जो रिवर्स है ना, वहाँ पे इसकी कमी होती है। ओके, इट इज़ मोर अल्कलाइन इन ड्रायर एरिया, सो दिस इज अलुवियल सॉइल। ओके, इसके अंदर सैंड भी 40% होगा और क्ले 60% होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्रॉप्स, इट इज सुटेबल फॉर रबी एंड खरीफ क्रॉप। अब देखो ऐसा क्यों होता है, सैंड का अमाउंट इसमें ज़्यादा है, इसलिए आपको देखो बाकी रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप दोनों क्रॉप्स ये सपोर्ट करता है, क्योंकि इसका जो सॉइल है ना वो दैट इज मोर टिलिएबल, भुरभुरा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर सैंड का अमाउंट ज़्यादा है। आप इसमें आपको इरिगेशन थोड़ा ज़्यादा करना होगा, लेकिन ये सारे क्रॉप्स को सपोर्ट करता है, चाहे वो रबी क्रॉप्स हो या खरीफ हो। ओके, इट इज इजिली टिलिएबल एंड लाइट एंड पोरस। ओके, पोरस क्यों हो गया? सैंड की वजह से, ठीक है ना। सैंड की वजह से ही आपको बार बार इसमें इरिगेशन देना करना पड़ता है, और इसीलिए इसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, ठीक है। डन। अब सैंड का दूसरा मैं बेनिफिट बता दे रहा हूँ आपको, जैसे सपोज करो आप पोटैटो वगैरह ग्रो कर रहे हो, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, तो इसके लिए ना आपका जो सॉइल है ना वो थोड़ा सा मतलब कि वो उसके अंदर एयरेबल सॉइल चाहिए, मतलब थोड़ा लाइट सॉइल चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर जब एयर एंटर करेगा तो ये जो चीज़ जो बैठती है ना, बोलते हैं जैसे ट्यूबर है मिट्टी के अंदर है, तो अगर सॉइल चपक जाएगा ना, जैसे ब्लैक सॉइल है, दबा देगा तो वो छोटा होगा, लेकिन अलुवियल सॉइल में वो बड़ा होता है, ये याद रखना है। राइस, व्हीट, कॉटन, टोबैको, ग्राम, ये सारे चीज़ ग्रो किए जाते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन इनलैंड अलुवियन, प्लीज मैप में जरूर देखें, यहाँ से क्वेश्चन होगा। अगर आपने मैप नहीं देखा, पूरे इंडिया के क्लास 10th का सिलेबस का मैप हमने बनाया है, उसको जरूर देखिए आप, क्वेश्चन एक भी वहाँ से बाहर नहीं होगा, ठीक है। और मैंने इसमें रिवर्स और सारे सब का ट्रिक भी दिया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। नेक्स्ट, इट इज फाउंड इनलैंड अलुवियम। देखो ये जैसा कि वर्ड बोला है, इनलैंड का मतलब क्या हो गया, यानी जमीन के अंदर। जैसे मान लो ये हो गया इंडिया अपना, ओके, ये हो गया इंडिया, मैंने मान लो हिमालय ड्रॉ कर दिया, तो जितनी रिवर्स है ना, अब रिवर्स की वजह से जितनी भी सॉइल आ रही है, बनी है, मतलब अंदर की तरफ फॉर्म हो रही है, दैट इज इनलैंड अलुवियम। इसमें खास हमारी जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स है ना, उन्हीं को हम लेंगे, आप साउथ इंडियन को नहीं लेंगे, जैसे इंडस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र। एंड दिस अलुवियम इज फाउंड मोस्टली इन द नॉर्दर्न प्लेन। कहाँ है? नॉर्दर्न प्लेन में। डन। डेल्टाइक अलुवियम, ये हाँ डेल्टा बनाते हैं, जैसे डेल्टाइक में आप साउथ इंडियन रिवर्स को लेंगे, ओके, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इसमें भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को ही लेंगे, क्योंकि ये डेल्टा बनाती हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा नहीं बनाती हैं। कोस्टल अलुवियम, इट इज फाउंड इन द पेनिसुलर इंडिया एंड प्लेन्स ऑफ गुजरात। डन। सो थोड़ा सा यहाँ आपको थोड़ा अपना ब्रेन थोड़ा सा ना मतलब वर्कआउट करना होगा, थोड़ा जगह है, और रिवर्स तो थोड़ा आप उनको एडजस्ट करेंगे। ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट सॉइल, दैट इज ब्लैक सॉइल। सो आई होप आपको ये अलुवियल सॉइल के बारे में मैंने जो पढ़ाया जितना वो बहुत है, मोर देन सफिशियंट है, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ओके, अगर क्वेश्चन पूछा कि व्हाई इट इज सुटेबल फॉर रबी एंड खरीफ क्रॉप बोथ, तो आप लिखेंगे बिकॉज इट इज इजिली टिलिएबल, इट इज रिच इन एनपीके, यानी नाइट्रोजन। गंगा की हम बात करें तो गंगा में नाइट्रोजन भी है, और बाकी सैंड का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा अगर इरिगेशन की सुविधा हो तो हम सारे क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट सॉइल। डन।
अगले सॉइल की हम बात करें, दैट इज ब्लैक सॉइल। कौन सा सॉइल हो गया? ब्लैक सॉइल। देख लो, ब्लैक सॉइल है, नीचे देखो डायग्राम, ब्लैक सॉइल देखने में ही ब्लैक है इसका, इसलिए नाम पड़ गया है ब्लैक सॉइल। ठीक है ना, जैसे आपका कोई दोस्त है तो आप लोग नाम रखते हो ना कलर वगैरह पे, बहुत लंबा है तो लंबू नाम रख दिया, छोटा है तो छोटू नाम रख दिया, मतलब रख देते ना बहुत, और अगर सांवला है तो कालू नाम रख देते हैं। वैसे ही ये सॉइल भी है आपकी, कौन सी सॉइल? ब्लैक सॉइल, उसके कलर पे नाम दिया जाता है। अभी रेड सॉइल आगे आएगा, रेड सॉइल में वो रेड कलर की होगी तो आप बोल दोगे रेड सॉइल, ब्लैक कलर की है तो बोल दिया ब्लैक सॉइल। ठीक है ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन और रेगुर सॉइल। यहाँ देखो दो शब्द है, ब्लैक कॉटन या रेगुर सॉइल। क्यों बोलते हैं इसको ब्लैक सॉइल? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कलर ब्लैक है। ठीक है ना, और रेगुर सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट, यानी कॉटन के ग्रोथ के लिए बहुत ही क्या है, सूटेबल है, इसलिए बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। रेगुर सॉइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका कलर ब्लैक है। अब रेगुर वर्ड का सेंस क्या है ना, इट इज फॉर्म्ड बाय द लावा, ब्रेकिंग अप ऑफ द लावा रॉक, यानी जो लावा रॉक है उसके टूटने से ये सॉइल बनती है, तो इसलिए ब्लैक कलर की होती है, इसलिए आप इसको रेगुर सॉइल बोलेंगे, कलर ब्लैक होने की वजह से। और ये ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों बोला जाता है? क्योंकि कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सूटेबल होती है। तो दो फैक्टर हो गया। ठीक है ना, देखो दिस इज अ रेसिडुअल सॉइल। इसके लिए ट्रिक क्या है, एलुवियल सॉइल को छोड़ के बाकी सारे सॉइल रेसिडुअल सॉइल हैं। इट इज फाउंड बाय डिन्यूडेशन ऑफ वॉल्केनिक रॉक, सो इट इज कॉल्ड लावा सॉइल। यानी लावा सॉइल क्यों बोल दिया? क्योंकि ये वॉल्केनिक रॉक्स यानी लावा ठंडे हुए तो वॉल्केनिक, तो उनके टूटने से बना है ये सॉइल, इसलिए ब्लैक कलर का भी है और लावा सॉइल भी है। एक भी रीजनिंग नहीं छूटेगा, ये याद रखना। डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज फाउंड इन द डेक्कन लावा ट्रैक इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड सम पार्ट ऑफ द तमिलनाडु। आप इसका डायग्राम जरूर याद रखें। यहाँ से सॉइल से एक मैप में जरूर क्वेश्चन होगा कि लेबल दिस सॉइल। मैंने जितना इससे प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की, मैंने अपने मैप में उसको कवर कर लिया, वहाँ आप जरूर देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेगुर सॉइल, इट इज ऑफ ब्लैक कलर बिकॉज इट इज फाउंड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ द लावा रॉक। तो आई होप ये रेगुर सॉइल क्यों बोलते हैं आपको ये जरूर बात समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इट इज फाइन एंड क्लेड। फाइन का मतलब देखो ये बिल्कुल 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 छोटा छोटा साइज का होता है। जैसे मैदा देखें ना आप, मैदा बिल्कुल फाइन होता है, और सूजी देखो बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो ये मैदे की तरह होता है, बिल्कुल चिकना, बिल्कुल छोटा छोटा। इट कंसिस्ट ऑफ 50% क्ले, और इसमें सबसे खास बात क्या है कि 50% क्या है, क्ले है, इसलिए इट कैन होल्ड मॉइस्चर। अब ये होल्ड करता है मॉइस्चर को, काफ़ी दिनों तक वाटर को पकड़ के रखता है। अलुवियल सॉइल इतना देर तक नहीं पकड़ के रखेगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सैंड का मात्रा ज़्यादा होता है। ओके, क्लियर? इट हैज़ सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी। अब देखो ये जैसे डायग्राम में देखें आप, जैसे ये देख रहे हो ना आप देख सकते हो यहाँ पे जो सॉइल है ना ब्लैक सॉइल, इसमें बहुत क्रैक फट चुका है, दरार आ चुकी है। अब दरार की वजह से इसमें एयर बहुत डेप्थ तक पेनिट्रेट कर जाएगा, एयर, तो एयर ऑटोमेटिकली जब बहुत डेप्थ तक पेनिट्रेट कर दिया तो आप इसे क्या बोलोगे, इट हैव सेल्फ एरेशन प्रॉपर्टी। बेसिकली फील्ड्स आर प्लाउड, यानी खेतों में हम जो ट्रैक्टर से आप देखोगे उसको जोत देते हैं, प्लाउ कर देते हैं। क्यों किया जाता है? ताकि सॉइल में ना एयर मिक्सअप हो जाए। ये तो ऑलरेडी अपने आप ये मिक्सअप हो जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एरेशन प्रॉपर्टी। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हम इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, व्हाई इज इट हैविंग सेल्फ एरेशन प्रॉपर्टी? तो आप देखें ऐसा क्यों, इट हैज सेल्फ एरेशन प्रॉपर्टी बिकॉज इट स्वेल्व व्हेन वाटर इज एडेड। यानी मान लो रेनफॉल वगैरह हुआ तो अगर इफ देयर इज रेनफॉल इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स, फूल जाएगा, एंड सिंक्स व्हेन ड्राइड। अब जब ये सूखेगा ना, जब सूखता है तो ये बहुत तेजी से श्रिंक करने लगता है, पचकने लगता है, उसके अंदर से जो वेपर है ना वो बाहर निकलने लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट डेवलप्स ब्रिक क्रैक्स, और इसी की वजह से इसमें दरार पैदा हो जाता है। इसीलिए आप इसे क्या बोलोगे, इट हैव्स हाई मॉइस्चर रिटेंसिंग प्रॉपर्टी। सो दिस इज द रीजन फॉर दैट यू हैव टू लर्न। ड्यू टू दिस वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी इट हेल्प्स रेन फेड क्रॉप्स टू सर्वाइव इन द ड्राई सीजन। यानी वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी, वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी इसकी ज़्यादा है, इसलिए काफ़ी दिनों तक ये जब वाटर को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। तो आप खुद सोच लो, इसलिए ये अगर जो प्लांट्स हैं ना उनको ड्राई सीजन में सर्वाइव करने में मदद करता है बिकॉज ऑफ इट्स वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिनरल्स, इट हैज़ हाई क्वांटिटी ऑफ लाइम, आयरन, मैग्नीज एंड पुअर परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? नेक्स्ट,
when we talk about the crops which are to be grown in the black soil, see crops, it is very fertile, यानी बहुत ही fertile soil है, so supports large number of crops like cotton, jowar, wheat etc. It stores water in its subsoil in any season. This is very important point. यानी हमने अभी देखा था it has high water retention property, यानी water retain करने की प्रॉपर्टी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए दिस इज बिकॉज ऑफ विच इट इज सूटेबल फॉर ड्राई फार्मिंग, इसीलिए इसकी हम क्या करते हैं, ड्राई फार्मिंग में इसका यूज़ करते हैं। ड्राई फार्मिंग का मतलब वो फसल को आप उगा सकते हो जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो, यानी नहीं रेनफॉल हो ना, तब भी इसके अंदर से जो वाटर है उसका यूज़ करके वो सर्वाइव कर ले, दैट इज ड्राई फार्मिंग। नेक्स्ट अगला सॉइल कौन सा हो गया आपका, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रेड सॉइल। रेड सॉइल यहाँ से देखें क्वेश्चन होगा, साफ और स्पष्ट उन्हीं पॉइंट्स को हमने कवर अप कर लिया है। आप देखें, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक, यानी ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक में कौन सा, ये रेड कलर का हो गया, तो कौन सा कलर रेड कलर का होता है, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक, रेड कलर का होगा, उसी से बनता है ये। इन हैवी एशियंट रॉक्स दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू ब्रेक टू फॉर्म दिस सॉइल। ओके, दिस सॉइल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी ये सॉइल डिफर करता है, अलग अलग होता है अलग अलग जगहों पे, क्योंकि अब इसका कलर अलग होगा, क्यों, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट रॉक फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड, यानी अब इसका कलर अब उसके पेरेंट रॉक पे डिपेंड करेगा, जिस रॉक से टूटा है। अगर सपोज करो वो येलोइश कलर का है तो उसका उससे जो बनेगा ना रेड सॉइल, वो हल्का सा कलर वेरिएशन शो करेगा। ओके डन, लेते हैं ये कहाँ मिलता है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल आफ्टर एलुवियम सॉइल, ये सबसे खास है। ब्लैक सॉइल सिर्फ 15% मिलता है। ओके, ब्लैक सॉइल देखें आप, ये रेड सॉइल इज द सेकेंड लार्जेस्ट परसेंट टू बी फाउंड इन इंडिया, यानी भारत में एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा मिलता है, नियरली 40 to 45%। उसके बाद ये मिलेगा कौन सा सॉइल, रेड सॉइल सेकेंड नंबर पे है। डन, इन साउथ टू बुंदेलखंड, इन नॉर्थ राजमहल हिल्स, इन ईस्ट टू कच्छ इन द वेस्ट, यानी इसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, रेड सॉइल का। तो ये एलुवियल सॉइल के बाद ये सेकेंड सॉइल है जो मिल रहा है, और इसको आपको याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा इसका कलर आप देखें, कलर कैसा दिख रहा है, जो हमने इस इमेज में लिया है, दैट इज रेड कलर, इजंट इट। अब ये क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये बार बार क्वेश्चन में पूछ लेता है आपसे, ठीक है ना। देखें आप कलर फर्स्ट, इट इज रेड इन कलर एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। टेक्सचर, यानी इसकी बनावट क्या है, इट इज पोरस, इसके अंदर पोरस का मतलब ये इसका साइज काफ़ी बड़ा है, तब इसके अंदर वाटर इजीली पेनिट्रेट करेगा। लूज एरेटेड, एरेटेड का मतलब इस दो सॉइल अगर बड़े बड़े हैं तो इनके बीच में एयर होगा ना, इसको बोलते हैं एरेटेड। पीएच वैल्यू 6.6 to 8। ओके डन। मिनरल्स, इट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। लोग तीन जो इंपॉर्टेंट सबसे प्लांट के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है ना मिनरल्स, वो NPK ही होते हैं, और तीनों इसमें कमी है। जब तीनों कमी हो गई, ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी है, तो आप बताओ इसके अंदर प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेगा क्या, नहीं। इट इज़ आइडियल फॉर ड्राई फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग इसी जगह पे की जाती है, ओके मतलब इसी सॉइल पे की जाती है। इट इज़ फाउंड इन द एरिया विथ पुअर रेनफॉल, और ये उसी एरिया पे मिलता है जहाँ रेनफॉल क्या हो, कम। डन। अब हमने अभी क्या देखा, इट लैक्स इन NPK, यानी एक प्लांट के ग्रोथ के लिए NPK बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब ये इसकी इसमें कमी है, तो यहाँ अगर आप ग्रो कर रहे हो क्रॉप तो वो नहीं ग्रो करेगा। So what you have to do, it is not fertile but it responds to the fertilizer। मतलब आप अगर इसमें ऐड कर दे रहे हैं ना NPK, डाई और यूरिया ऐड करते हैं ना आप, तो डाई में NPK ही होता है। तो अगर इफ़ यू आर एडिंग फर्टिलाइजर टू दिस पर्टिकुलर सॉइल, देन नो डाउट प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। ओके, सो आई होप ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को, और लाइक भी जरूर करें। इट इज़ सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्रॉप, यानी यहाँ पे कल्टिवेटिंग हर क्रॉप के लिए यूज होता है। इट इज़ यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल, रागी क्रॉप्स, टोबैको, पोटैटो, ग्राउंडनट, शुगर केन एंड ऑल। ओके नेक्स्ट, लास्ट है आपका कौन सा सॉइल, लेटराइट सॉइल। कौन सा सॉइल है, लेटराइट सॉइल। और ये बहुत ही खास होने वाला है सॉइल, क्योंकि आप देखें क्वेश्चंस किसी पार्ट से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हाँ मैं 100% श्योर हूँ कि इनसे जो मैं सॉइल्स का जो कॉन्सेप्ट उठा रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, फोर्थ, लेटराइट सॉइल। दिस सॉइल इज फाउंड बाय द रिजल्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक वेदरिंग ऑफ रॉक अंडर हाई रेनफॉल एंड टेम्परेचर, यानी बारिश भी ज़्यादा हो और तापमान भी जहाँ होगा
तो वहाँ वेट और ड्राई होने की वजह से, वेट का मतलब बारिश होगा तो वेट हो गया और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ड्राई हो गया। इससे क्या बनता है, कौन सा सॉइल बनता है, लेटराइट सॉइल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग ऑल्सो। लीचिंग, अब देखो लेटराइट सॉइल इज फाउंड बाय लीचिंग। अब आपको एग्जाम में कैसे याद होगा, ये एमसीक्यू पूछता है, दोनों में एल कॉमन है। क्या कॉमन है, एल। ओके, एल फॉर लेटराइट सॉइल, एल फॉर लीचिंग। लीचिंग इज द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट गेट्स पर्कोलेटेड डाउन ड्यू टू हैवी रेनफॉल लिविंग द सॉइल इनफर्टाइल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसिलिकेशन। लीचिंग क्या है, सपोज करो हैवी रेनफॉल हुआ तो आप थोड़ा सा समय लूंगा मैं इसमें समझाने के लिए। देखो प्लांट है, प्लांट्स एब्जॉर्ब, थोड़ा साइंस में चलते हैं। अगर प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर या न्यूट्रिएंट्स, तो प्लांट कैन एब्जॉर्ब ओनली दैट न्यूट्रिएंट विच इज सॉल्युबल इन वाटर, यानी प्लांट्स उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ले सकता है जो वाटर में सॉल्युबल हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर मान लो किसी सॉइल में काफ़ी दिनों तक पानी लगा हुआ है तो वो जो प्लांट्स ले रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, वो उस पानी के अंदर डिजॉल्व होगा तभी तो लेंगे। लेकिन आप सोचो, मान लो अगर पानी काफ़ी दिनों तक लगा हुआ है और उसमें अगर वाटर एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है, तो वो ग्रेविटी की वजह से अर्थ के अंदर भी जाएगा। जब वो अर्थ के अंदर जाएगा तो अपने साथ वो न्यूट्रिएंट्स को लेके भी चला जाता है, और इसीलिए इसी प्रोसेस को आप लीचिंग बोलते हो। जब न्यूट्रिएंट्स सारे नीचे चले गए तो जो ऊपर जो सॉइल बच जाता है ना, वो बिल्कुल बेकार सॉइल होता है, और ये प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, लीचिंग बोलते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया ना। टाइप्स ऑफ लेटराइट सॉइल, इट इज ऑफ टू टाइप, अपलैंड एंड लोलैंड लेटराइट। अपलैंड ये सिर्फ हाइट पे है, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं, हिल्स वगैरह पे होता है, देख लेते हैं डिफरेंस, कभी कभी पूछ देता है बोर्ड में। अपलैंड लेटराइट्स आर फाउंड ओवर द हिल्स एंड अपलैंड्स फ्रॉम वेयर द लोलैंड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय स्ट्रीम टुवर्ड द लोलैंड, दिस सॉइल इज कॉल्ड लोलैंड। यानी अपलैंड से यहाँ पे जो ऊपर बना है ना, इसको बोलेंगे अपलैंड, और इनसे जो सॉइल बना है नीचे, इसे क्या बोलते हैं, लोलैंड। डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेशन आप इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, हाईलैंड एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड अदर पार्ट्स। इसके लिए डायग्राम से क्वेश्चन होगा, डायग्राम हमने पहले बोला है, बार बार बोल रहा हूँ, जरूर देखें आप। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट, इट इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अगेन आयरन ऑक्साइड एंड द बाय प्रोसेस ऑफ लीचिंग। यानी हमने रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल दोनों को हमने क्या देखा, इनका रेड कलर का होने का रीज़न क्या है, आयरन ऑक्साइड, ये लीचिंग से बनता है, ये थोड़ा इसका खास है। टेक्सचर, कोर्स टेक्सचर, सॉफ्ट एंड फ्राइएबल, ठीक है, थोड़ा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, सॉफ्ट होंगे, फ्राइएबल भुरभुरे होते हैं। ओके, मिनरल्स, इट इज़ अ पोरस सॉइल पुअर इन लाइम एंड मैग्नीज, ये याद रखें आप। डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन ऑल्सो, नाइट्रोजन है अगर आप, ठीक है ना, रेड मतलब ये रेडिश कलर का ही होता है। यहाँ से देखो, ये बोर्ड से ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। इट इज़ वाइडली कट एज ब्रिक एंड इज कंसीडर्ड सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों है, यानी इसे हम ब्रिक क्यों बनाते हैं। तो देखो, जब इसको वाटर में मिक्स करके हम छोड़ देते हैं ना, ब्रिक के फॉर्म में बना के, जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है ना, तो ये अपने आप बहुत ही सॉलिडिफाई हार्ड हो जाता है, इसलिए इसको ब्रिक बनाने के काम में लिया जाता है। बिकॉज इट हार्डन्स एट इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर। तो ये हार्ड हो गया ना, बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए आप इसका क्या बनाते हो, इसका क्या बनाते हैं, हम ब्रिक बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो, इधर है लेटराइट सॉइल, देख लें आप, इट हार्डन्स एंड इट फॉर्म्स ब्रिक, इससे ब्रिक बनाया जाता है। केरल वगैरह में ये कॉमन है। डन। अब इसको जब आप ये कांटेक्ट में आता है ना एयर के, जब आप मान लो ब्रिक बनाना है, इसमें पानी में मिलाने के बाद रख दोगे ना, ब्रिक के फ्रेम का बना के, अपने आप खुद से हार्ड हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल इसके लिए हम करते हैं। डन। अब हम क्रॉप्स की बात करें, इट डज नॉट रिटेन मॉइस्चर, ये मॉइस्चर रिटेन ही नहीं करता है। कारण क्या है, देखो इसका साइज जो है ना बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो इसमें गैप ज़्यादा होने की वजह से वाटर नीचे चला जाता है, इसलिए ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कम है। हैंस इट इज़ नॉट फ्राइएबल। क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, टपिएका, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है कि आप इसमें कौन सा क्रॉप ग्रो करते हैं, ये आप इसको याद रखेंगे। आर ग्रोन, पैडी इज ग्रोन इन द लोअर एलिवेशन, यानी जो नीचे की जगह है ना, जहाँ थोड़ा पानी रुक जाए, वहाँ पे पैडी वगैरह लगा देते हैं, वरना इन फसलों को उगाया जाता है। ट्री, चिंकोना, रबर एंड कॉफी आर ऑल्सो ग्रोन ऑन द हायर एलिवेशन, यानी इन ट्रीज को आप कहाँ उगाते हो, हायर एलिवेशन पे। टी का तो हमने पूरा ये बताया कि बेसिकली आप टी, कॉफ़ी, कॉटन को कॉफ़ी, रबर और टी को आप हायर एलिवेशन पे क्यों उगाते हैं, क्योंकि इनको, ये बहुत नौटंकी वाले प्लांट हैं, पहले ही बोले, इसमें से सबसे नौटंकी वाला प्लांट कौन सा है, टी है। पानी, रेनफॉल चाहिए 200 सेंटीमीटर प्लस,
लेकिन अवकात नहीं है कि बर्दाश्त कर ले 2 सेंटीमीटर भी पानी अपने जड़ में। अगर वो हैवी रेनफॉल की वजह से अगर वाटर रुक गया ना इसके जड़ों में, स्टैग्नेंट हो गया, ये प्लांट सूख जाता है। इसलिए इनको स्लोप्स पे ही उगाया जाता है। ये हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा है, आप उसको भी जरूर देखें। नेक्स्ट विल गो फॉर द सॉइल इरोजन। यहाँ से देखें, ये रिमूवल ऑफ द सॉइल कवर बाय द वाटर, विंड एंड ह्यूमस एक्टिविटी इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ये डिफिनीशन हो गया, आप इसको रट लें। यानी जो टॉप सॉइल हमने देखा था ना सॉइल प्रोफाइल में, वो कैसे भी करके हट जाए उसे आप क्या बोलते हो, सॉइल इरोजन। अब देखो ये 15 to 20 सेंटीमीटर का होता है टॉप सॉइल, इसको बनने में ना 100 साल लगते हैं, उससे ऊपर ही लगेंगे, ठीक है। तो बनने में इतना समय लगता है, लेकिन इरोजन में तुरंत ही इरोड हो जाता है। एंड दैट लेफ्ट अ बेयर लैंड दैट इज बाय द रिमूवल ऑफ दिस फर्टाइल और टॉप मोस्ट लेयर रिच इन ह्यूमस, दिस इज सॉइल इरोजन। डन। दिस ऑफ टू, देखें आप यहाँ पे सॉइल इरोजन बाय विंड, यानी खास क्या है, देखें आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ इरोजन की हम सीधा बात कर लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ इरोजन। फर्स्ट, ये यहाँ पे थोड़ा मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, ये नहीं है, हियर इट शुड बी टाइप ऑफ इरोजन। फर्स्ट टाइप्स में फर्स्ट कौन सा हो गया, सीट इरोजन। ओके, सीट इरोजन में देख लें आप, थोड़ा डायग्राम देख लो एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने डायग्राम लिया है एक तो, देखें, दिस इज सीट इरोजन। सीट इरोजन में क्या होता है कि ये देखो आप, थोड़ा इधर से जो जमीन है ना, इसका हाइट ऊपर है, इधर का हाइट नीचे है। ध्यान से देखें, हाइट ऊपर और नीचे होने की, या इधर भी बहुत ऊंचाई है, इधर नीचे है। अब इधर से जब वाटर बहाना इस साइड की तरफ, तो हल्का हल्का ना अपने साथ वो मिट्टी का एक पतला सा लेयर लेके बह गया। बारिश कम है, स्लोप जेंटल है, यहाँ पे जो मिट्टी बह गई ना, इसकी वजह से सीट इरोजन होगा। कौन सा इरोजन होगा, सीट इरोजन। अब देखें, अब सीट इरोजन के कंपैरिजन में पानी और तेज बारिश हुई तो फिंगर लाइक यहाँ देखें प्रोजेक्शन बन गया, गड्ढा 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 बन गया। ये बहुत भयंकर गड्ढा नहीं है, छोटा ही छोटा है। इसको आप कौन सा इरोजन बोलेंगे, रिल इरोजन। इससे ज़्यादा रेनफॉल हुई, और अगर बहुत ही भयंकर रेनफॉल हो गई और बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है, और ये जो ज़मीन है ना, अब ये खेती लायक भी नहीं बची है। ट्रैक्टर लेके जाओगे अंदर गिर जाएगा ट्रैक्टर। यहाँ बिल्कुल पतला थोड़ा सा इरोजन हुआ, पानी भी, रेनफॉल भी कम था, और बेसिकली देयर वाज अ जेंटल स्लोप। यहाँ इसके कंपैरिजन में रेनफॉल ज़्यादा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यहाँ बहुत हैवी रेनफॉल जिससे काफ़ी मिट्टी बह गई, दिस इज गुली इरोजन। ओके, सो नाउ वी विल सी द डिफिनीशंस। फर्स्ट, सीट इरोजन। It occurs on gentle slope and is slow removal of thin layer of soil when vegetation is destroyed. Vegetation का मतलब अगर grasses या plants present होते हैं ना, तो वहाँ ये इरोजन नहीं होता। लेकिन अभी हमने जो डायग्राम देखा था वहाँ पे भी कोई ग्रास वगैरह नहीं थे। रेन वाटर वॉशेस अवे थिन लेयर ऑफ द बेयर सॉइल, दिस इज सीट इरोजन। नाउ रिल इरोजन हमने समझा दिया है, आप इसको बस समझते तुरंत समझ में आ जाएगा। व्हेन सीट इरोजन कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग, काफ़ी दिन तक हुआ। सिल्ट लेडन ऑफ रन ऑफ मेनी, इट फॉर्म्स finger shaped grills or groove over a large area, this is called rill erosion। यानी ये फिंगर लाइक ग्रूव्स बन गया, देख लो आप इस डायग्राम में, इसे क्या बोलते हो आप, ये इन दोनों के बीच में है, सीट इरोजन और गिल इरोजन के दोनों के बीच में है। ओके, अगर हम गिल इरोजन की बात करें तो ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर, यानी बहुत तेज जब बारिश हुई, तो ये देख लो आप, डीप गुल्लीस, इन्हीं जो गड्ढा बन गया ना, इसी को क्या बोलते हैं आप, गुल्लीस बोलते हैं। गुल्लीस आर फॉर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ वाटर रन ऑफ, दिस गुल्लीस आर रिमूव्ड। अब यहाँ से पूरा न्यूट्रिएंट क्या, मिट्टी ही बह गई। एग्जाम्पल इसका सबसे ऐसा कॉमन कहाँ है, चंबल वैली रीजन में गुली इरोजन का वो बेस्ट एग्जाम्पल है। सो आई थिंक आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप कभी दोबारा नहीं पूछोगे कि सर ये समझ में नहीं आया, क्योंकि डायग्राम से बच्चों को सारी चीज़ समझ में आ जाती है। नेक्स्ट इज द लीचिंग। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, न्यूट्रिएंट्स गेट परकोलेटेड डीप इनटू द सॉइल ड्यू टू रेनफॉल। सी शोर इरोजन क्या होता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए हाई टाइड लो टाइड की वजह से जो पानी आके ना कोस्ट पे अगर डैश किया, तो यहाँ से जो रॉक्स हैं, मिट्टियाँ हैं, रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ओके, डैमेज हो जाते हैं, तो इसको आप क्या बोलते हो, सी शोर इरोजन। देख लेते हैं। टाइडल वाटर कॉज डैमेज टू द सॉइल एट द कोस्ट, पावरफुल वेव डैशेस ब्रेक मटेरियल नियर बाय, इट इज कॉमन इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया। डन। स्ट्रीम बैंक इरोजन, streams and rivers change their course by cutting one bank and depositing the silt on the other, this is due to the फ्लश। यानी अगर मान लीजिए रिवर्स अपना रास्ता बदलती है ना, तो एक जगह का वो मिट्टी कट करके दूसरे जगह डिपॉजिट करने लगती हैं, तो ऐसे कटान से जो होता है ना, वो कौन सा हो जाएगा, स्ट्रीम। रिवर्स के मूवमेंट से जो इरोजन हो रहा है, जिसकी वजह से अभी देखो
हर रिवर, जैसे यहाँ रिवर गंगा वगैरह पे किनारे किनारे पत्थर लगाया जा रहा है ताकि वो स्ट्रीम बैंक इरोजन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ओके, इट इज फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ गंगा, यमुना एंड अदर रिवर्स। नाउ सोइल इरोजन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ये खास है, इंसानों की एक्टिविटीज से क्या होती है। यहाँ जो मैंने पॉइंट्स लिखा है बस आपको वही पॉइंट्स को ही लिख लेना है और बहुत आसान है। देखिए, फर्स्ट, लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर ड्यू टू सीट इरोजन ऑन हिली स्लोप्स, यानी अगर हिली स्लोप्स जितने भी हो गए, यानी माउंटेन्स है ना जहाँ पे, वो इंसान वहाँ जाके क्या कर दे रहा है, पेड़ों को कटाई कर दे रहा है, स्लैश एंड बर्न एग्जाम्पल ले लीजिए, इससे बहुत तेजी से इरोजन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट, आउटर हिमालयास और शिवालिक, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट आर सब्जेक्टेड टू डिफॉरेस्टेशन बाय मैन। क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे हिमालय रीजन में यानी शिवालिक में सबसे ज़्यादा इरोजन होने का कारण बताएं। ईस्टर्न घाट पे सबसे ज़्यादा, व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ द इरोजन ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, देन दैट रीजन इज डिफॉरेस्टेशन डन बाय द मैन। आई होप दिस इज क्लियर। हैवी रेन देन वॉशेस अवे द बेयर सॉइल लिविंग द वैल्यू। ओके, इसके बाद इसके यहाँ पे क्या होता है, बहुत तेजी से इरोजन हो जाता है। नेक्स्ट, अगला ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा अनकंट्रोल्ड इरोजन इज इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सीट रेल एंड गूली इरोजन कॉमन इन द अपर प्लेस, यानी अनकंट्रोल्ड जो इरोजन्स होते हैं ना, ठीक है, और अनकंट्रोल्ड आप एनिमल रियरिंग भी बोल सकते हैं, यानी एनिमल ग्रेजिंग, यानी जो जानवर होते हैं ना वो इंसान ले जाके उनको कॉमनली जो छोटे छोटे वेजिटेशन है ना उन पर काफ़ी बार वो चरा देते हैं जानवरों को, मतलब घास वगैरह होती है ना, तो जो जानवर होते हैं ना उनके पैरों से वो पहले तो ग्रासेस को खा जाते हैं, फिर अपने पैर से उनको मिट्टियाँ को ढीली कर देते हैं क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है, वहाँ से इरोजन भी होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, इरोजन बाय विंड। फर्स्ट, इट कॉज मूवमेंट एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय द विंड। फर्स्ट, इसमें क्या है, इट अकर्स व्हेन सॉइल इज डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। सबसे खास बात, यानी विंड इरोजन वहीं होगा जहाँ पे जो सॉइल है वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है। वेजिटेशन का मतलब प्लांट्स या ग्रासेस नहीं है ना, वहीं पे होगा ये इरोजन, अदरवाइज ये इरोजन होने वाला जल्दी नहीं है। दूसरी बात, स्पीड विंड की क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो, और रेनफॉल क्या हो, कम। 3 रीजन्स हैं, वेजिटेशन का नहीं होना, सेकेंड स्पीड विंड का तेज होना, थर्ड रेनफॉल का नहीं होना, इसीलिए विंड का इरोजन होगा, अदरवाइज विंड का इरोजन नहीं होगा। इसमें 2 वर्ड इंपॉर्टेंट बहुत खास हैं जो देखें। विंड इरोजन में ना बार बार दोनों को पूछता है, हमने अलग अलग दोनों को पॉइंट बना के लिया है। व्हेन विंड मूव्स सॉइल पार्टिकल, देखो अगर सॉइल पार्टिकल बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा 0.1 से 0.5 mm, तो हवा आता है ना तेज, तो इसको उठा के यहाँ एक बार पटकता है, फिर उठा के पटकेगा, फिर उठा के पटकेगा। इस मूवमेंट को आप क्या बोलते हो, सॉल्टेशन। इसको क्या बोलते हैं, बाउंसिंग और हुपिंग फैशन। छोटा है, यहाँ से बाउंस करके सॉइल यहाँ गिरेगा, इसको बाउंसिंग या हुपिंग करेंगे, यानी सॉइल पार्टिकल का ट्रांसफर बाउंसिंग या हुपिंग तरीके से हो रहा है, दैट इज सॉल्टेशन। लेकिन अगर सॉइल पार्टिकल बड़ा है तो ये थोड़ी हवा इसको उठा पाएगा, ठीक है, तो ये गोल गोल घूमता है, जैसे बॉल, फुटबॉल आपने मार दिया तो गोल गोल घूम के चल रहा है ना, तो इस मूवमेंट को आप क्या बोलते हो, सॉइल क्रीप। क्या बोलेंगे इसको आप, सॉइल क्रीप। इसका साइज इंपॉर्टेंट है, सॉल्टेशन में साइज कम होता है 0.1 to 0.5 मिलीमीटर, लेकिन सॉइल क्रीप में साइज इज ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर टू विच एयर इज और विंड इज अनेबल टू पिकअप। सो आई होप दिस 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर क्लियर। सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे आपको, आई होप तुरंत समझ में आया होगा। नाउ कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। फर्स्ट, ओवरग्रेजिंग। जैसे मैंने बताया, ओवरग्रेजिंग में खास क्या होता है, देखो आप, जैसे मान लो अगर हम बात करें यहाँ जानवर हैं, देखो आप, तो इनके जो पैर हैं ना, देखो ये पहले तो ये पूरे ग्रासेस को खा जाएंगे, ग्रास को खा गए, बचा ना इनके जो पैर के नीचे जो मिट्टी होती है ना, जहाँ ये भारी जानवर होते हैं, इनका हूफ जो ये पैर है ना, ये बहुत कम एरिया होता है, तो एरिया कम होने की वजह से ये मिट्टी को ना लूज कर देता है, ढीला कर देता है, जिसकी वजह से अगर एयर आएगा ना तो इस मिट्टी को उड़ा के लेके चला जाता है। दिस इज सॉइल इरोजन डन बाय द ओवरग्रेजिंग। तो 2 आपको समझा दिया मैंने, ठीक है ना। आगे देख लो, जितना भी पॉइंट आएंगे सारे हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में तो समझाना ही नहीं है, उसमें क्या है, अगर फॉरेस्ट होगा तो क्या करेगा, आप देखो, इससे समझो, ये देखो, बेसिकली ट्रीज होल्ड द सॉइल। इससे आप क्या समझ रहे हो कि ये देखो रूट्स दिख रहा है, यानी यहाँ पे जो ट्रीज है ना, उनकी रूट्स जो मिट्टियाँ हैं ना उसको पकड़ के रखते हैं, लेकिन अगर आपने इसको कट कर दिया ये, तो फिर ये ढीला पड़ गया, तो यहाँ से इरोजन होने लगता है। डिफॉरेस्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है सॉइल इरोजन का, जो इंसान माउंटेन पे बहुत तेजी से कर रहा है। कटिंग ऑफ द ट्री एक्सपेंसेस द सॉइल टू वाटर एंड लेट्स टू सॉइल इरोजन। हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। अब हैवी पॉपुलेशन प्रेशर का सॉइल इरोजन से क्या संबंध है, अगर आप सोच रहे हो। सी, पहले बाघ हुआ करता था जब हम लोग छोटे थे,
बहुत सारे बाग थे, हम लोग बहुत खेलते थे क्रिकेट, हर जगह बाग होता था क्योंकि पॉपुलेशन कम था। अब क्या हुआ है, बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ गया, लोग बढ़ गए, खाने की चीज़ों की कमी पड़ रही है, ज़मीन तो सेम तभी जितना था उतना अभी, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से घर लोग बना रहे हैं। वो जो बाग था ना जहाँ पहले बच्चे खेला करते थे, काट के उसको एग्रीकल्चरल ज़मीन बना दिया गया है ताकि वहाँ से क्रॉप्स को उगाया जा सके। तो अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ता तो ऐसा थोड़ी होता है, उतना ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ता फूड क्रॉप्स का, तो उनकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत तेज़ी से कट रहे हैं और जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया। नेचर ऑफ द रेनफॉल, अब देखो नेचर ऑफ रेनफॉल का मतलब क्या है। हमारे यहाँ बेसिकली देयर इज सीजनल रेनफॉल। सीजनल रेनफॉल मीन्स देयर इज रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में इतना ज़्यादा बारिश होगा ना कि वो उस वक्त वाटर के साथ मिट्टी बह रहा है, बाकी समय में बारिश ही नहीं होगा। जब बारिश नहीं है तो सॉइल के अंदर मॉइस्चर की कमी होने लगती है, तो अब जब मॉइस्चर की कमी है तो सॉइल पार्टिकल आपस में एक दूसरे से चिपकते नहीं है, तो हवा, जैसे गर्मी के सीजन में देखो गर्म हवा चलता है ना, तो उसके साथ मिट्टी ही उड़ रही है अपनी। तो एक तो ज़्यादा बारिश उसकी वजह से, एक बिल्कुल बारिश ही नहीं है इसकी वजह से, तो दोनों वजह से सॉइल अपना इरोजन हो जाता है, इरोड हो जाता है, उड़ जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। दिस इज द बेसिक रीजन। ओके, अब देख लेंगे इसमें जो मैंने लिखा है उसको एक बार पढ़ लेंगे। बैड फार्मिंग टेक्निक्स। बैड फार्मिंग टेक्निक्स को समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम लिया। देखो अब जैसे मान लो पहले का ही जो तरीका वो लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं, बैड फार्मिंग टेक्निक्स, ठीक ना, तो ये टेक्निक सही नहीं है और तरीका भी गलत है, इसलिए सॉइल इरोजन हो रहा है। क्लियर। स्मॉल होल्डिंग्स एंड ओल्ड फार्मिंग टेक्निक्स आर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है ना, यहाँ आप किससे लोगे, टोपोग्राफी का मतलब होता है हाइट, यानी अगर मान लो दो हाइट है, जैसे अलग अलग हाइट के प्लांट्स है, जैसे सपोज करो यहाँ पे देख लो आप, ये एक आपका प्लॉट हो गया नीचे हाइट और दूसरा हो गया ऊपर, सपोज करो यहाँ हो गया, ठीक ना। तो अब आप यहाँ पे कैसे खेती करोगे आप बताओ। तो जो एक हाइट का ज़मीन होता है ना, वहाँ पे आप इसको एक साथ अलग खेती कर लेते हैं, इसको अलग कर लेंगे तब तो चलेगा, लेकिन नहीं तो जो स्लोप होता है ना, यहाँ से अब सॉइल इरोजन बहुत तेज़ी से होने लगता है, इस पर अगर आपने खेती कर दिया तो यही गलती करते हैं लोग, जिसकी वजह से देयर इज़ हैवी सॉइल इरोजन। डन। टोपोग्राफी भी आपको, यानी एक जो लेवल लैंड है ना उसको एक अलग प्लाउ करना चाहिए। जो स्लोप्स है ना, टोपोग्राफी में सबसे ज़्यादा इरोजन कहाँ होगा, इन स्लोप्स पे होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिवेंट दिस सॉइल इरोजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप इसको कैसे रोक सकते हो, आपका योगदान क्या होना चाहिए, क्या क्या रेमेडीज हैं जो लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए। सो फर्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। बर्न्स, मेड़ बोलते हैं, ऑन द हिली एरिया प्रिवेंट द सॉइल। यहाँ कहाँ कॉमन है, आसाम, वेस्ट एशिया, जापान एक्सेट्रा। आप इसको थोड़ा अगर देखना चाहो तो देख लो। जैसे टेरेस फार्मिंग की हम बात करें, देख लें यहाँ पे टेरेस है, यानी यहाँ पे देख रहे हैं बहुत मिट्टी का बंड बनाया गया है, ये जो बोलते इसी को बंड बोलते हैं, ठीक है ना, बंड। अब ये पानी को और अगर इधर उधर फैलने नहीं देगा, पानी को रोक देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इरोजन भी रुक गया और यहाँ पे खेती भी हो गया। देख लो किनारे किनारे बंड बनाया गया है। ओके, देख लो ये क्लियर। तो ये इसको आप टेरेस फार्मिंग बोलते हो। टेरेस फार्मिंग स्लोप्स पे कॉमन है, कहाँ कॉमन है, स्लोप्स पे। डन। नाउ शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स, farmer plant trees in several rows to stop soil erosion done by the wind. This is also called wind break. आप देख लो यहाँ पे डायग्राम में, देखो यहाँ से, अगर यहाँ देख रहे हो आप, इस साइड से लाइन से प्लांट को प्लांट कर दिया गया है ताकि इधर से जो हवा है ना बहुत तेज से वो अब इन प्लांट्स में टकरा के ना वो हवा का स्पीड घट जाए। स्पीड क्या हो इसका, घट जाए, जिससे कि इससे दो फायदा होता है। अगर मान लीजिए इधर सैंड है उसका एक्सटेंशन नहीं होगा, प्लस इसकी वजह से जो इधर जो फर्टाइल ज़मीन है ना इस साइड कॉर्नर में इधर बड़ा सा, तो यहाँ पे इस पे इसका असर भी कम होगा। तो प्लांटिंग ऑफ प्लांट्स इन सेवरल रोज इन ऑर्डर टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द एयर इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया, इसको विंड ब्रेक भी बोलते हो आप। नेक्स्ट, कंटूर प्लाइंग। प्लाइंग अलॉन्ग द कंटूर और स्लोप्स प्रिवेंट्स सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड। टेरेस आर लेबल्ड इनटू द स्टेप लाइक स्मॉल फील्ड्स इवन स्लोप्स। यानी यहाँ पे वही हमने बात किया कि जो कंटूर प्लाइंग होता है ना उसमें आप एक हाइट पे एक प्लांट देखो, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये इतना एक हाइट है, इस इतने ज़मीन का जो हाई मतलब कि लेवल है ना वो एक है, तो यहाँ एक फसल उग गया, ठीक। और ये वाले का अलग है तो आपने उसको पे अलग अलग से वहाँ पे प्लाव किया। अब जो यहाँ स्लोप्स है ना, यहाँ पे इरोजन रोकता है क्या, कंटूर प्लाइंग। तो
एक हाइट वाले जगह पे आप एक प्लो करें, मतलब सिर्फ इतना ही एक साथ प्लोइंग करें, इसमें मिक्स ना करें, वरना यहाँ स्लोप पे इरोजन होने लगेगा। तो आप इसे बोलते हैं क्या, कंटूर प्लोइंग। क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखें आप ध्यान से, स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट स्ट्रिप ऑफ लैंड टू चेक सॉइल इरोजन बाय विंड और वाटर, यानी अल्टरनेट स्ट्रिप्स में उगाया जाता है। अल्टरनेट का मतलब अलग अलग, ओके। अल्टरनेट स्ट्रिप्स में देख लें आप, ये देखें यहाँ अलग फसल उगा लिया गया है और यहाँ पे अलग। यहाँ बेनिफिट क्या होता है ना, ये अलग समय पे पकता है, मैच्योर होगा, इसको किसान अलग समय पे काट लेगा। अब यहाँ मान लो पूरा एक साथ ये फील्ड खाली हो जाता ना तो इरोजन होने लगता, लेकिन यहाँ देखो अब ये छोटा छोटा है, ये पहले कट जाएगा, ये बाद में कटेगा, तो यहाँ स्पीड विंड की वजह से ना स्पीड जो है विंड का वो कम होगा, तो यहाँ इस फील्ड को इरोजन से बचाया जा सकता है। तो यही है स्ट्रिप क्रॉपिंग, ओके, स्ट्रिप क्रॉपिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। डैम को अगर हम कंस्ट्रक्ट कर लें तो जो रिवर है ना उसके अपर कोर्स में अगर हम यहाँ ने कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने डैम, तो वाटर का मूवमेंट यहाँ रेगुलेट करके नीचे सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। प्लगिंग गुलीस, गुलीस को रोक, गुलीस जैसे हमने देखा था ना, बहुत बड़े बड़े जो गड्ढे हो गए थे, यहाँ देखें आप, जैसे देखो ये गुलीस है, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है। अब इसको यहाँ देखो इंसानों ने पत्थर लगा दिया है या ईंट वगैरह कुछ भी लगा दिया है, लकड़ी वगैरह, इससे इसको रोक दिया गया है। ऐसा करके भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। प्लगिंग गुलीस, प्लगिंग का मतलब होता है बंद करना, ओके। नेक्स्ट, प्लांटिंग ट्रीज। बेस्ट तरीका है सबसे, क्या है, स्टीप स्लोप पे आप प्लांट लगा दें, जिससे कि दो फायदा होगा। एक, पहला फायदा क्या हो गया कि सॉइल इरोजन रुक जाएगा, ओके, सॉइल इरोजन रुकेगा। दूसरा, अब सॉइल हो गया ना, ये जो इसके जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, इससे वाटर एब्जॉर्बिंग एंड रिटेंशन प्रॉपर्टी सॉइल का क्या होता है, बढ़ता है, और अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस बाय विच दिस कैन बी डन। सो आई होप आपको ये हमने जो पढ़ाया ये पूरा कॉन्सेप्ट इजी लगा होगा और आसान लैंग्वेज में समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ इतना तो मिनिमम आपको पढ़ना ही है। अगर आप इससे कम पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस कहीं से अगर वो पूछे तो फिर मुश्किल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो मिनिमम ये इतने पॉइंट्स को एक दो बार और आप पढ़ लें, और एग्ज़ाम से पहले एक बार जरूर रिवाइज करके जाएं। और मैं डैम श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। एक बार और फिर मैं लास्ट में बोलूँ, प्लीज़ इफ़ यू आर ए न्यू व्यूअर देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए, और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।